46 बहुत इंटरेस्टिंग प्रोविजन है। प्रीसेप्ट, बहुत बार टाइटल और हेडिंग से डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है इस टर्म से। विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रोविजन ऑफ द सीपीसी डील्स विद द प्रीसेप्ट? सिविल प्रक्रिया संहिता का निम्न में से कौन सा प्रावधान आज्ञा पत्र से संबंधित है, प्रीसेप्ट से है, वो रिलेटेड है? सेक्शन 46। अपॉन द एप्लीकेशन ऑफ डिक्री होल्डर, द कोर्ट which passed the decree may, whenever it thinks fit, issue a precept to any other court which would be competent to execute the such decree. For what purpose? To attach any property belonging to the judgment debtor and specified in the precept. Precept, the one of the order or the command or the direction of the court which passed the decree to another competent court within the jurisdiction of that court, the any property of judgment debtor has been situated, etc. For what purpose the such precept has been issued by the court which passed the decree on the application of the decree holder to attach the property belonging to the judgment debtor and specified in the that command, that order, that direction, that precept. The such order of the court, such command of the court is said to be a precept under the subsection first of the section 46, and it is the stage prior to the transfer of the decree. If court, in the opinion of the court, there is a possibility of a long period to transfer the decree, maybe cause the delay to transfer the decree, the court may take the immediate action for attachment of the judgment debtor's property to secure the fruit of the decree in favor of the decree holder. The such type of the immediate measure or the immediate action can be taken by the court which passed the decree under the subsection first of the section 46. It is not a permanent attachment, it is an interim attachment, it is a temporary attachment for a certain period. It is an interim or temporary attachment for a certain period, it is not considered a permanent attachment. Subsection 2 is concerned to the period of validity or enforceability of the attachment. The court to which a precept is sent shall proceed to attach the property in the manner prescribed in regard to the attachment of the property in execution of decree. The court to which a precept is sent under the subsection first of section 46, how to proceed for the attachment of the decree in the same manner which is prescribed for the attachment of the property in execution of the decree, either under order 21 rule 43 is concerned to the attachment of the movable property, manner of the attachment of the movable property, or either under order 21 rule 54 that is provided for the manner of the attachment of immovable property. By the any one of the matter which is manner which is prescribed under the rule 43 of the order 21 or rule 54 of the order 21, in same manner the court which the precept is sent to proceed for the attachment of the property belonging to the judgment debtor and situated within the territory of the that another court, provided that no attachment under a precept shall continue for more than 2 months. What is the general period of the enforceability or validity of the attachment? The maximum 2 months generally, but it may be extended under the exceptional circumstances unless the period of attachment is extended by an order of the court which passed the decree, or unless before the determination of the such attachment the decree has been transferred to the court by which the attachment has been made and the decree holder has applied for an order for the sale of such property. The ordinary period of validity or enforceability of the attachment in consequence of the precept is the 2 months from the date of attachment, and this period may be extended in certain circumstances if the before the expiration of the such 2 months the decree has been transferred to the another court and also the decree holder made the application for sale of the that attached property, then the attachment shall not ceases on the expiration of the 2 months. The period of attachment shall extend from the 2 months, and the period of the attachment has been extended by the express order of the court which passed the decree. The period may be extended for more than 2 months. Exceptionally, in these two circumstances, the period of validity of the attachment may be more than 2 months. Otherwise, not fall under these exception. What is the general period? Not more than 2 months. Means maximum 2 months the such attachment shall be
in force as per this proviso of the subsection 2 of section 46. धारा 46 जैसा बैरेक्ट में दे रखा वैसे हिंदी में प्रोविजन नहीं मिलेंगे आपको, थोड़ा सा अलग एंगल से लिखे हुए मिलेंगे, तो आपको उसके साथ साथ इंग्लिश के साथ टैली भी करते रहना है कि सबसेक्शन फर्स्ट कहाँ तक आ रहा है। डिक्रीदार के आवेदन पर डिक्री पारित करने वाले न्यायालय द्वारा आज्ञा पत्र जारी करना, जबकि 46 का टाइटल क्या है, केवल आज्ञा पत्र है। क्या है, केवल आज्ञा पत्र है। और इसको मैंने थोड़ा एक्सटेंडेड टाइटल दिया है, डिक्रीदार के एप्लीकेशन या आवेदन पे होगा। कौन जारी करेगा इसको आज्ञा पत्र को, डिक्री पारित करने वाला न्यायालय। डिक्रीदार के आवेदन पर डिक्री पारित करने वाला न्यायालय आज्ञा पत्र जारी कर सकता है धारा 46 के अंतर्गत। पर्पज क्या है इस आज्ञा पत्र का, निर्णीत ऋणी की विनिर्दिष्ट संपत्ति को कुर्क करने के लिए अन्य सक्षम न्यायालय को एक आदेश दिया जाता है, और वो आदेश या वो निर्देश है वो क्या कहलाता है, वो आज्ञा पत्र कहलाता है। ये इसका इंटरप्रिटेशन है। प्रीसेप्ट का लिटरल मीनिंग क्या है, निर्णीत ऋणी की विनिर्दिष्ट संपत्ति को कुर्क करने के लिए अन्य सक्षम न्यायालय को जो है भेजा जाने वाला एक आदेश या निर्देश जो है वो डिक्री पारित करने वाले न्यायालय द्वारा, वो आदेश या निर्देश क्या कहलाता है, वो आज्ञा पत्र कहलाता है। और सामान्यतः आज्ञा पत्र के अनुसरण में की गई कुर्की कितने महीने तक प्रवर्तन में रहती है, 2 महीने तक। ये सबसेक्शन 2 का परंतुक है, धारा 46 की उपधारा 2 के प्रोवाइजो में ये दे रखा है। ये प्रीलिम्स के पेपर के अंदर जो है वो बहुत पूछा जाता है, ऑब्जेक्टिव पेपर में। वैलिडिटी का पीरियड जो है 2 मंथ्स, 2 महीने जो है वो प्रवर्तन में वो रहती है। और इसके कुछ अपवाद भी है जो प्रोविजो में डिस्कस किए हमने। आज्ञा पत्र के अनुसरण में की गई कुर्की 2 महीने के बाद भी प्रवर्तन में या 2 महीने से आगे भी प्रवर्तन में रह सकती। कब, उस 2 महीने से पूर्व डिक्री पारित करने वाले न्यायालय द्वारा कुर्की को अवधि को बढ़ा दिया है, ऑर्डर देके जो है 2 महीने की समाप्ति से पहले जो है डिक्री पारित करने वाले कोर्ट ने एक ऑर्डर पारित किया कि ये कुर्की जो आगे 2 महीने और प्रवर्तन में रहेगी, आगे 1 महीने और प्रवर्तन में रहेगी। 2 महीने की समय अवधि की समाप्ति से पहले ऐसा ऑर्डर कर दिया तो वो कुर्की का पीरियड आगे बढ़ जाएगा। या दूसरा, डिक्री को 2 महीने की समाप्ति से पहले अन्य न्यायालय को भेज दिया गया है और डिक्रीदार ने जो है उस अन्य न्यायालय में उस वो कुर्क की गई संपत्ति के विक्रय के लिए आवेदन कर दिया गया है। ये दोनों बातें एक साथ कंप्लीट होती है। 2 महीने की समाप्ति से पहले डिक्री को ट्रांसफर कर दिया 39, 40 एटसेट्रा के अंदर, और वो डिक्री होल्डर ने वहां ट्रांसफरी कोर्ट में जाके या जिसने अटैचमेंट का ऑर्डर दिया था, जो है अटैच की थी प्रॉपर्टी, वहां जाकर यदि सेल करने के लिए एप्लीकेशन पेश कर दी है, तो ऐसी कंडीशन में भी 2 महीने की समाप्ति पर जो है वो कुर्की समाप्त नहीं होगी, आगे कंटिन्यू है वो कुर्की बनी रहेगी। और इन 2 अपवादों में कवर नहीं होता है, तो सामान्यतः धारा 46 में आज्ञा पत्र के अनुसरण में की गई कुर्की का क्या प्रभाव होगा, 2 महीने तक वो जो है वो प्रभावी रहेगा या 2 महीने तक कुर्की प्रवर्तन में रहेगी। और कैसे वो कुर्क करेगा, जिस न्यायालय को प्रीसेप्ट या आज्ञा पत्र भेजा गया है वो कुर्की कैसे करेगा, उसमें एक लाइन दे रखी है सबसेक्शन 2 में कि डिक्री के निष्पादन में जो संपत्ति की कुर्की के लिए रीति दे रखी है उसी रीति से की जाएगी। और डिक्री के निष्पादन में कुर्की की रीति कहां बता रखी, ये हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है कि जंगम संपत्ति है, यदि मूवेबल प्रॉपर्टी है जजमेंट डेटर की, उसको अटैच करना है तो ऑर्डर 21 का रूल 43, इसमें मैनर जो दे रखा है बाय एक्चुअल सीजर, क्या दे रखा है, बाय एक्चुअल सीजर, वास्तव में उसे अभिग्रहित करके। और यदि स्थावर संपत्ति है, इमूवेबल प्रॉपर्टी है, उसको अटैच किया जाना है तो उसका मैनर जो है ऑर्डर 21 का रूल 54, ऑर्डर 21 के रूल 54 में दे रखा है, उस मैनर से अटैच होगी। अटैचमेंट का मैनर वही रहेगा जो एग्जीक्यूशन में बता रखा है, और वो कहां बता रखा है, ऑर्डर 21 के रूल 43 और ऑर्डर 21 के रूल 54 में, उसी मैनर से अटैचमेंट होगा सेक्शन 46 में भी। प्रीसेप्ट, प्रीसेप्ट मीन्स अ कमांड or an order. What is the literal meaning of the precept? Precept means a command or an order. The principal object of the attachment by precept is to enable the decree holder to obtain an interim attachment, attachment of the property of the judgment debtor situated within the jurisdiction of the another court, where it is apprehended the decree holder may otherwise be deprived of the fruits of the decree. The principal object of the attachment by precept is what?
to obtain the interim or temporary attachment of the property of judgment debtor by the decree holder to secure the fruit of decree, not to be deprived from the fruit of the decree. For that purpose, that this interim or temporary order of the attachment or the attachment is allowed by the issuing the precept. A precept is an order or the direction. Precept is an order or direction given by the court which passed the decree to a court which would be competent to execute the decree to attach the property belonging to the judgment debtor. What is the purpose of this precept? Directed to the another court to attach the property belonging to the judgment debtor and also specified in that order or command. The court which passed a decree may, upon an application by the decree holder, issue a precept to the court within whose jurisdiction the property of the judgment debtor is laying to attach the any property specified in the precept. The property of the judgment debtor is laying or situated, whatever the term. That court is considered competent to attach that property. An order of the precept is merely a step taken to facilitate the execution. Merely a step taken to facilitate the execution and not an order transferring a decree. It has no effect of the transferring the decree. It is only a step taken to facilitate the execution of the decree, to make easy the execution of the decree. It is for this reason that the effect of attachment in pursuance of the precept shall not continue for the more than 2 months, unless the period of attachment is extended by order of the court which passed the decree. An order of permanent attachment is therefore illegal. If order of the permanent attachment has been passed under section 46, that order is considered a illegal order, because it is a temporary attachment or the interim attachment of the property of judgment debtor. Also, no attachment can be effected under this section where the property is situated outside India. If the property is situated outside India, whether by way of the issuing the precept, the court which passed the decree to direct the another court to attach that property, no. For that purpose, it is not, precept is not sufficient. There may be the another process which is by the foreign external ministry, etc. Send or forward to the foreign courts, and foreign court can attach that property in execution of that process. It is only applicable when the property is situated within India. प्रीसेप्ट जो शब्द हमने पढ़ा, इसका अर्थ क्या है? एक कमांड या आदेश से, कमांड का मतलब एक आज्ञापक आदेश। आज्ञापत्र से कुर्की का मुख्य उद्देश्य क्या है? डिक्री धारक को निर्णीत ऋणी की संपत्ति की अंतरिम कुर्क करवाने में मदद करना है, जो किसी दूसरे न्यायालय के क्षेत्राधिकार में स्थित है और जहां यह आशंका है डिक्री धारकों कि डिक्री के फल से उसे जो है वो वंचित किया जा सकता है, डिक्री के फल से वो वंचित हो सकता है, ऐसी उसको आशंका है डिक्री धारक को जो है, तो वो जो है वो एक एप्लीकेशन पेश कर सकता है डिक्री पारित करने वाले न्यायालय के समक्ष, और डिक्री पारित करने वाला न्यायालय अन्य न्यायालय जिसके क्षेत्राधिकार की सीमाओं में निर्णीत ऋणी की संपत्ति स्थित है उसको डायरेक्शन दे सकता है कि इसकी इस प्रॉपर्टी को आप अटैच कर लीजिए। तो वो जो है वो डायरेक्शन है, वो क्या है? वो आज्ञा पत्र या प्रीसेप्ट कहलाता है। प्रीसेप्ट एक आदेश या निर्देश है जो उस न्यायालय द्वारा दिया जाता है या पारित किया जाता है जिसने डिक्री पारित की है, और उस न्यायालय को जो निर्णीत ऋणी की किसी संपत्ति को कुर्क करने के लिए वो डिक्री को निष्पादित करने के लिए सक्षम होगा। पर्पज इसका क्या है? जजमेंट डेटर की प्रॉपर्टी को अटैच करने के लिए, और वो अन्य न्यायालय जो है वो उसकी कंपिटेंसी क्या, वो डिक्री का एग्जीक्यूशन करवाने में कॉम्पिटेंट है, मीन्स वो संपत्ति उसके क्षेत्राधिकार में स्थित है, इसलिए उसको जो है वो डायरेक्शन दिया जा रहा है कि आपके क्षेत्राधिकार में स्थित ये निर्णीत ऋणी की मूवेबल और इमूवेबल प्रॉपर्टी, इसको आप अटैच कर लीजिए जो है। तो इसलिए ये प्रीसेप्ट या आज्ञा पत्र जारी होता है। जिस न्यायालय ने डिक्री पारित की है वो डिक्री धारक के आवेदन पर उस न्यायालय को आज्ञा पत्र जारी कर सकता है जिसके क्षेत्राधिकार में निर्णीत ऋणी की संपत्ति है, ताकि आज्ञा पत्र में विनिर्देश किसी भी संपत्ति को जो है वो कुर्क किया जा सके। दो प्रकार के कोर्ट है। इश्यू कौन कर सकता है प्रीसेप्ट? डिक्री पारित करने वाला न्यायालय, कोर्ट विच पास्ड डिक्री। किसको इश्यू किया जा सकता है? जिसके जुडिक्शन में है वो जजमेंट डेटर की कोई प्रॉपर्टी है वो सिचुएटेड है या अवस्थित है, उसको है वो भेजा जा सकता है। और पर्पज क्या है वो टू अटैच द प्रॉपर्टी ऑफ द जजमेंट डेटर, है वो निर्णीत ऋणी की संपत्ति को कुर्क करवाना जो है वो उद्देश्य है इस आज्ञा पत्र का। आज्ञा पत्र का आदेश केवल निष्पादन को आसान बनाने के लिए उठाया गया एक कदम है,
न कि निष्पादन के लिए डिक्री को अंतरण करने वाला आदेश। ये जो प्रीसेप्ट का ऑर्डर जो है ये डिक्री के ट्रांसफर के ऑर्डर का प्रभाव नहीं रखेगा। डिक्री का अंतरण धारा 39, 40, 45 एटसेट्रा जो आपने प्रीसीडिंग प्रोविजन पढ़े हैं उनसे गवर्न होगा, उसमें एक्सप्रेस ऑर्डर होगा तभी वो अंतरण होगा। ये तो है वो क्या है, एजुकेशन को इजी बनाने के लिए, एजुकेशन को सिक्योर करने के लिए एक है वो कोर्ट के द्वारा है वो लिया गया एक मेजर या एक स्टेप है, वो एक उपाय या कदम है। इस वजह से इस नियम के मुताबिक जो है कुर्की का प्रभाव 2 महीने से अधिक क्या वो नहीं रहेगा। इस धारा 46 के अंतर्गत जो है वो कुर्की सामान्यतः 2 महीने तक ही प्रवर्तन में रहेगी। इसका जो है वो ये परमानेंट है वो कुर्की की श्रेणी में नहीं आता, ये टेम्परेरी अटैचमेंट है। क्या है, अस्थायी या इंटरिम जो है अंतरिम जो है वो कुर्की है, जब तक कि डिक्री पारित करने वाले न्यायालय के आदेश से कुर्की का समय नहीं बढ़ाया। यदि डिक्री पारित करने वाला न्यायालय 2 महीने की अवधि के समाप्त होने से पहले ऑर्डर पारित करके कुर्की का समय बढ़ा दे या डिक्री ट्रांसफर कर दे 2 महीने से पहले उस अन्य न्यायालय को जिसने कुर्की का ऑर्डर है वो कुर्क की थी संपत्ति, और वहां डिक्रीदार यदि संपत्ति का विक्रय करने के लिए एप्लीकेशन भी 2 महीने की समाप्ति से पहले वो पेश कर दे, तो उस कंडीशन में भी कुर्की आगे 2 महीने के बाद भी प्रभावी रह सकती है। इसलिए स्थायी कुर्की का यदि ऑर्डर दिया जाए सेक्शन 46 के अंदर, वो कोर्ट जिसको प्रीसेप्ट भेजा गया था, तो वो क्या होगा, इलीगल ऑर्डर होगा। वो स्थायी रूप से कुर्क करने का जो उसमें टाइम उसको मेंशन करना पड़ेगा कि ये जो अटैचमेंट जो है आज की डेट से, आज क्या डेट है 26 फरवरी, तो ये 26 अप्रैल तक इन्फोर्स में रहेगा, या आज की तारीख से 2 महीने तक जो है वो इन्फोर्स में रहेगा। ये बात उसके ऑर्डर में आनी है, वो आवश्यक है वो। ऐसा नहीं कि प्रॉपर्टी को अटैच किया जाता है, ऐसा ऑर्डर नहीं, टाइम मेंशन करना पड़ेगा कि मैक्सिमम इतने पीरियड तक ये है वो कुर्की प्रवर्तन में रहेगी। यदि स्थायी ऑर्डर कर दिया जाए तो वो इलीगल ऑर्डर होगा, अवैध है वो आदेश होगा। साथ ही इस धारा के अंतर्गत कुर्की तब नहीं की जा सकती जब संपत्ति कहां है, भारत से बाहर स्थित है। मींस दूसरा एंगल क्या है, भारत के भीतर स्थित संपत्ति के बारे में ही प्रीसेप्ट इश्यू हो सकता है। भारत के बाहर कोई संपत्ति स्थित है तो आज्ञा पत्र जारी नहीं हो सकता, उसके लिए कोई एग्जीक्यूशन में ऑर्डर 21 में अदर कोई प्रोसेस है वो हो सकता है।